एक चींटी को भी इस तरीके से डिजाइन किया है जी कि उसके भीतर एक सेल्फ हीलिंग पावर होती है, अपने आप को स्वस्थ करने की एक क्षमता होती है। इंसान अगर नास्तिक भी है ना जी, ये एक प्राकृतिक गुण है उसके भीतर का जी। जो लोग थोड़ा धार्मिक अपना मार्केटिंग करना चाहते हैं जी, वो अपने अपने भगवान का नाम और लेबल उसके ऊपर लगाकर थोड़ा सा उसका पैकेट चेंज कर देते हैं। अच्छा, गुरु की वाणी को, सबसे बड़ी वाणी जिसके आगे अंग्रेज झुक रहा है, जिसके आगे मुसलमान झुक रहे हैं, जिसके आगे पूरा हिंदुस्तान झुक रहा है, जिसने पूरी धरती की सोच को अपने आगे झुका लिया, उस सिखिज्म की सोच को 1-2 टके का आदमी उल्टे सीधे उदाहरण देता है। इंसान भी इतना कमजोर है, वो सोचता है कि 4 रुपए की मनोकामना पूरी करने के लिए मैं अपना धर्म बदल दूं। उसके जब माँ के घर में बालक होता है ना, तभी उसकी नाभि में इस ऊर्जा का निर्माण शुरू हो जाता है। तुम्हें अपने धर्म में इंटरेस्ट नहीं जी, और तुम दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हो जी। आज तुमने ये छोड़ा है ना, तुम उसको भी छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ का रिश्ता है उससे। तुम्हारी 4 मनोकामना उससे पूरी नहीं होगी। तुम कहोगे कि यार मैं बन क्या। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਭਟਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਰੀਏ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਦ ਤੋਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ? ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਪੁੰਜ ਜੀ ਕੋਲ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਵਿਪਨ ਪੁੰਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਪੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਪਨ ਪੁੰਜ ਜੀ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਊਰਜਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? नाइस क्वेश्चन। समझने वाली बात यह है यहाँ पे जी कि जब हम नाम लेते हैं रेकी, ये नाम भी जापान का दिया हुआ नाम है जी, और इसमें समस्या वाली बात ये आती है कि इसको भी भारतीय आदमी तब अपना रहा है जब इसका नाम चेंज होकर अंग्रेजी नाम या जापानी नाम हो गया जी। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है जी, ये भारत की सबसे बड़ी एक संपदा है जी। ये विद्या सीधा सीधा ये कहती है कि तेरे भीतर ही महायोग है, जीवन न दुखी खान। कि परमात्मा ने एक चींटी को भी इस तरीके से डिजाइन किया है जी
कि उसके भीतर एक सेल्फ हीलिंग पावर होती है, अपने आप को स्वस्थ करने की एक क्षमता होती है जी। और वो क्षमता मानव के भीतर अपार होती है और वो इतनी बड़ी मात्रा में होती है जी। उस क्षमता को किसी भी धर्म से, किसी देवी देवता, किसी विश्वास, किसी अन्य पीर वगैरह जो भी विश्वास है मानव के, उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन इंसान अगर नास्तिक भी है ना जी, ये एक प्राकृतिक गुण है उसके भीतर का जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी जी। उसके द्वारा इंसान अपने आप को भी ठीक कर सकता है और दूसरे को भी ठीक कर सकता है जी। और ऐसे कुछ 100 लोग नहीं है जी, ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उपचार करके, कोई इसको प्राणिक हीलिंग बोलेगा, कोई रेकी हीलिंग बोलेगा, कोई यूनिवर्सल हीलिंग बोलेगा, कोई थीटा हीलिंग बोलेगा। अच्छा, जो लोग थोड़ा धार्मिक अपना मार्केटिंग करना चाहते हैं वो अपने अपने भगवान का नाम और लेबल उसके ऊपर लगाकर थोड़ा सा उसका पैकेट चेंज कर देते हैं। अच्छा। और पॉलिटिकल और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो समाज में उसको लेकर आना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी आपने अपनी चर्चा शुरू की थी तो आपने कहा धर्म परिवर्तन हीलिंग को लेकर जी, तो ये चीज हर मानव को, खासकर पंजाब की धरती को और पंजाब के समान जो केरल की धरती भी है जी, जहां पे लोग केवल अपनी गुरु की वाणी को, सबसे बड़ी वाणी जिसके आगे अंग्रेज झुक रहा है, जिसके आगे मुसलमान झुक रहे हैं, जिसके आगे पूरा हिंदुस्तान झुक रहा है, जिसने पूरी धरती की सोच को अपने आगे झुका लिया, उस सिखिज्म की सोच को 1-2% का आदमी उल्टे सीधे उदाहरण देता है और पूरे गांव का धर्म परिवर्तन करा के वहां से छूमंतर हो जाता है। उस आदमी के पास फंडिंग आ रही है और इंसान भी इतना कमजोर है, वो सोचता है कि 4 रुपए की मनोकामना पूरी करने के लिए मैं अपना धर्म बदल दूं। जी, समझ रहे हो? अगर आप थोड़ा भी इस चीज को आप झांकोगे ना, हल्का सा भी समझोगे, इस विद्या के द्वारा आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। गांव का आदमी जो खेत में हल जोत रहा है जी, एक जो ट्यूबवेल चला रहा है, एक चाहे अफसर या आईपीएस बना हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर प्रकृति ने बिना धर्म जाति के भेदभाव के एक सुपर पावर, एक ब्रह्मांडी ऊर्जा उससे उसको नवाजा है जी। जब माँ के गर्भ में बालक होता है ना, तभी उसकी नाभि में इस ऊर्जा का निर्माण शुरू हो जाता है जी, उसकी नाभि में उस ऊर्जा का निर्माण शुरू हो जाता है। क्योंकि अब धीरे धीरे पिछले 100 सालों में, 150 सालों में भारत में, मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा, जैसे भारत के पुरानी विद्याओं में उनके गुरुकुल चला दिए, देश के गुरुकुल चला दिए, गुरुओं को मार दिया, इनके टीचर्स को मार दिया, हमारे टीचर्स को मार दिया, इतनी सारी किताबें तो जलकर राख हो गई और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया इंडिया को इस तरीके से कि कोई भी यहाँ पे आए और इंसान को नॉलेज के लेवल पे इतना ब्लाइंड कर दिया जी, कि उसको ये बिलीव करने के लिए मजबूर करवा दिया कि तुम जिस समाज में रह रहे हो वो कमजोर है, तुम्हारी विद्याएं कमजोर है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कमजोर है, हमारा जो है वो बढ़िया है जी। और किन चीजों पे बढ़िया है उसके वो तथ्य पेश करते हैं जी। तो आपको ये बात समझनी होगी। मैं कह रहा हूं चलो तुम्हें अपने धर्म में इंटरेस्ट नहीं जी, और तुम दूसरे धर्म की तरफ जा रहे जी। हो, आज तुमने ये छोड़ा है ना, तुम उसको भी छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ का रिश्ता है उससे, तुम्हारी 4 मनोकामना उससे पूरी नहीं होगी। तुम कहोगे कि यार मैं बन क्या गया जी, और उसमें कोई गहराई नहीं है। ये शक्ति आपके भीतर है जी, इसको पहचानो। जो आदमी स्टेज में खड़े होकर सबको ऐसे नचा रहा है ना भूत भूतनी की तरह, आप खुद उस व्यक्ति को ठीक करके आ जाओगे। आप उससे ये सवाल पूछो कि हम आपके धर्म के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं, तो विदेशों में तुम्हारे जो फादर्स हैं, जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, वो व्हील चेयर पे क्यों हैं, वो बीमार क्यों हैं, आप उनको जाके ठीक क्यों नहीं करते? जी। तो शॉर्टिंग डाउन अ लॉन्ग स्टोरी, जी, ये जो हीलिंग पावर है इसके लिए अब जन जन को जागना चाहिए। फिर उसको पता लगता है परमात्मा की वो जो निराकार शक्ति जिससे पूरा जगत जगमगा रहा है वो उसके भीतर है और ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसमें विश्वास करने की भी जरूरत नहीं है जी। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आपके अंदर ये पावर है। जी गुरुदेव, लेकिन जो आपने कहा कि हमारे यहाँ की ये परंपरा है, ये हमारे पास बहुत जबरदस्त रेकी की हीलिंग है जिसको बोलते हैं ब्रह्मांडी ऊर्जा। तो क्या कारण है कि हम अपनी ही जो विरासत है इतनी बड़ी, हम चाहे अपने आप हिंदू कहलाएं, चाहे जैन कहलाएं, बौद्ध कहलाएं, सिख कहलाएं, हम इसको भूल क्यों गए? क्या क्या कारण जानते हैं आप, ऐसा क्यों पीछे हो गया? देखो आज की तारीख में अब तो ये बात छुपी भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि देश के साथ क्या क्या हुआ। सोशल मीडिया के कारण ये जागरूकता आती जा रही है। जी। समाज के
भारतीय समाज के एजुकेशन सिस्टम को मल्टी डायमेंशनल लेवल पर चोट पहुंचाई गई जी, इनके माइंड वॉश करे गए जी, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, इतनी बड़ी आबादी अगर ये हमारी मुट्ठी में आ जाएगी जी, तो हम इनको अपने दोबारा इनसे प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, इनको नौकर बना सकते हैं, हमारी दवाइयां इनके यहाँ पे बिके। सोचो जी, 150 करोड़ आदमी है जी, घर घर में विदेशी दवाई जा रही है, कितना मुनाफा जा रहा है हाँ जी, है ना। अच्छा, ये रिलीजियस कन्वर्जन भी अपने आप में हाईएस्ट पावर है। जिस रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा पृथ्वी में होते हैं वो डोमिनेट करता है जी, उसका भी इंडिया एक पावरफुल टारगेट है। अगर इंडिया में सोचो लोग ही 1 करोड़ होते हैं जी, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं होता यहाँ पे जी, अपनी मार्केट बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए। तो माइंड वॉश जो होता है इंफॉर्मेशन लेवल पर, पहले तो परिवारों में से पूरे तरीके से शून्य कर दिया कि तुम्हारा धर्म क्या है जी। इसमें भारत के खुद के तथाकथित गुरुओं की भी बहुत बड़ी गलती है कि इन्होंने भगवान का मतलब केवल जादू टोना कथा और 4 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर करोड़ रुपए की मनोकामना पूरी करने की गारंटी, जी, इस तरह की बातें जो 2025 में और ज्यादा होने लगी हैं जी, इस तरह की बातें जब घर परिवार में होने लगी तो बच्चों को भी समझ में आने लगा जी, कि पूरी जिंदगी जब पैसे के लिए ही रोना है, जी, और एक कॉमन सेंस की बात होती है कथा सुनने से पैसा कैसे आ जाएगा भैया, जी, मनोकामना पूरी होगी कथा सुनने से और पैसा आ जाएगा, बच्चा सोचता है। अब दूसरा व्यक्ति जो है धर्म वाला, जी, जो जिसके तुम टारगेट हो, जी, जिसके तुम शिकार हो, वो दूर से अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है जी, कि इसको इस तरीके से फंसाया जा सकता है, हाँ, और वो नई कहानी बनाकर जैसे एक प्रोडक्ट बेचा जाता है ना, और एक टेस्टिमोनियल दे देते हैं कि देखो मैंने जीसस के नाम पर इसके ऊपर हाथ लगा और ये हिलना शुरू हो गया। जी, अब व्यक्ति को पता तो है नहीं वो हिल क्यों रहा है। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी की सारी प्लानिंग है जी, कि भैया वो अपना आदमी लेकर आया हिलने लगा, उसके पीछे भी रीजन है। जी, इंसान को अगर नींबू का अगर आप कहो कि तू कल्पना कर नींबू खा, तो उसका थूक अंदर नींबू जैसा पैदा होने लगेगा, स्वाद पैदा होने लगेगा। अच्छा, तो बिलीव सिस्टम को इंसान के ऐसे हैक किया जा सकता है जी, जिसको जो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनर्स हैं, जी, यानी जो मन की शक्ति के ऊपर अच्छे से काम करना जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं कि इस टेक्निक को कैसे यूज करके सामने वाले को वो चीज बिलीव करवाई जा सकती है जी, और एक नहीं बड़े समूह में, जी, जो हम चाहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ का क्या देखते हैं जी, यहाँ चर्च में कुछ लोग ऐसे भी बनाए हैं, चर्च के नाम पे लाखों लोगों को, हजारों लोगों को इकट्ठे कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमने ऐसे हाँ किया तो सभी गिर गए। हाँ, वो क्या कंसेप्ट है? इसको बोलते हैं ग्रुप हिप्नोसिस। जी, कमजोर मन के लोगों को पकड़ा जाता है। जैसे आप देखते हो, आप कभी नहीं सुनोगे कि बहुत बड़ा परिवार है, कोई पॉलिटिकल फैमिली है या हीरोइन है या कोई फीमेल पॉलिटिशियन है, उसको कोई भूतनी चिपट गई या उनको कोई देवी मैया आ गई और वो सर हिला रहे हैं। हाँ, हालांकि नाथ संप्रदाय में इस विद्या को बहुत खूबसूरती से लोगों को दिया गया। अच्छा जी, लेकिन जो ये ग्रुप हिप्नोसिस होता है, जी, ये हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन, इसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, हिप्नोसिस को भी समझो, ये हिप्नोटाइज ऐसा नहीं होता किसी को मंत्र मार दिया या शमशान में बैठ के क्रिया कर दी ऐसे। जी, वो भी उनके अंदर भी अगर दम है हाँ, तो वो पूरे गांव को सम्मोहित करके दिखाएं। विद्या होती है, लेकिन ये कैसे काम करता है, इंसान वीक माइंडसेट के, जिनके पास नॉलेज बेस कम होता है, जी, लॉजिकल एप्लीकेशंस थिंकिंग की बहुत कमजोर होती हैं, जी, जिनको बड़े आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, जी, और जो खुद भी बदलाव के लिए तैयार हो कि भैया हम बदलने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें आटे की बोरी चाहिए जी, घर पे, तो उनको जो बिलीव करवाना होता है ना, वो बिलीव करवाने लगते हैं जी, और फिर वो सब एक लेवल पे सबका माइंडसेट आ जाता है। फिर आप उनको बोलोगे कि आप बंदर की तरह नाचो तो बंदर की तरह नाचने लगेगा, आप उसको बोलो कि तुम गधे की आवाज निकालो तो वो गधे की तरह नाचने लगेगा। जी, दिस इज द ट्रिक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी, और जो उस माइंड की इस पावर को समझता है ना, जी, या तो वो बहुत अच्छा हीलर बन जाता है, जी, या फिर वो एक बड़ा स्कैमर बन जाता है। ये आतंकवादियों के जो लीडर होते हैं ना, जी, जी, वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने के लिए। जी, हाँ, किसी को अपने पीछे कैसे लगाना, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे सबको विश्वास दिलवा दिया कि आप फलाने को मार दो, हाँ, आपको जो है वो 72 हूर या पुण्य प्राप्त होगा। उनकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन कोई भी समझदार आदमी, उनके बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो खुद समझते हैं कि उनके जो नए धर्म गुरु हैं वो क्या मजाक कर रहे हैं उनके धर्म के साथ। जी, जी, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है
कि ये माइंड पावर कैसे काम करती है, और भगवान का नाम यूज करके उसमें उन सबको बड़े मात्रा में इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है और अपना ग्राहक बनाया जाता है। और पंजाब, केरल इन चीज़ों में फंस रहा है ज़्यादातर, उसमें वो कमज़ोर आदमियों को टारगेट करते हैं। मैं कहता हूं कि किसी मजबूत आदमी को टारगेट करके दिखाएं जी, जो किसी गांव का सरपंच हो, कोई किसी बिजनेस का लीडर हो, कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, छोटा मोटा नहीं कोई बड़ा ऐसा सेलिब्रिटी जो अचीवर हो, जिसकी पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में फैली हो, उसको नहीं कन्वर्ट करवा पाएगा जी। तो ये इस तरीके से सारा दिमाग का खेल होता है। थोड़ा भी वैज्ञानिक तरीके से समझोगे तो आप खुद एक नया भगवान मार्केट में ला सकते हो। अच्छा जी। हाँ जी, अगर आपको इस माइंड पावर के बारे में पता लग जाए जी। लेकिन असली बात कहाँ पे है, वो गुरबाणी में कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गई है जी, कहीं ना कहीं बाइबल में भी कहा गई है, लेकिन बाइबल का उद्देश्य ये नहीं था जो आज पंजाब में चल रहा है जी। ये चीज है गुरप्रीत जी। जी, तो ऐसा है जैसे गुरु जी आप जहाँ दिल्ली में बैठे हैं, कभी जो दिल्ली है वो भी पंजाब का ही एक हिस्सा हुआ करता है। हाँ जी बिल्कुल। तो पंजाब की बात करें, कहते पंजाब वसदा गुरुआं दे नां ते। हाँ जी। 350 साल गुरु तेग बहादुर महाराज ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਸਦਾ ਆ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ हैं? हाँ, ये इस पर अगर आप ध्यान से देखोगे गुरप्रीत जी, तो इंसान है ना आज छोटी छोटी चीजों के लिए बिकने के तैयार है जी। वो अपना धर्म परिवर्तन किन चीजों के लिए कर रहा है, बेटियां हो रही है जी, बेटा हो जाए जी, इस चीज को लेकर। जी जी। मैं कह रहा हूं ये केवल जीसस के नाम पर ही नहीं, पंजाब में हर गांव में एक ऐसा बाबा आपको मिल जाएगा, जी ठीक है, जो डेरा लगाकर बैठा होता है, पावर उसके पास होती नहीं, सिद्धि उसके पास होती नहीं है। बहुत जगह बनी है जी। 20-20 लाख रुपए लोगों से ले लेते हैं कनाडा और अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए जी। अब जिस शहर की मानसिकता ही ऐसी हो कि मुझे जैसे तैसे वीजा मिल जाए, ट्यूबवेल में पानी आ जाए, भैंस बीमार पड़ गई है, वो समुदाय अगर केवल इस चीज के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है तो सोच लो गलती तो यहाँ पे उस इंसान, उस परिवार की भी है ना जी, कि उसने अपने धर्म को इस तरीके से समझा है जी। वो अब छोटी छोटी चीजों के लिए बिकने के लिए तैयार है। वही चीज है। पर इस हालात ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ 100-150 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार होती है। अब तो खैर गवर्नमेंट थोड़ी जागरूक होना शुरू हो गई है जी। जब सत्ता का लालच होता है ना जी, तो वो आदमी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के मौके, ग्राहक के रूप में देखता है जी। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मानव को छोड़ के जितने प्राणी हैं जी, वो सब घर में ही बच्चे को अपनी गुफाओं में, जंगलों में अब बच्चे को जन्म दे रहे हैं जी। केवल अब मानव की जो औरत है वो इतनी कमजोर हो गई है कि उसको बच्चा जन्म देने के लिए अस्पताल जाना पड़ा है। जी जी बिल्कुल। वो उसके दिमाग में डाला गया क्योंकि डर बिठाया गया, बच्चा मर गया तो जी, तुम मर गई तो ठीक है। इसके पीछे और भी टेक्निक यूज करी जाती है जी। इसके पीछे ये टेक्निक यूज करी गई कि थोड़ा सा स्टोरी को यूज करके कि तुम जिस भगवानों की पूजा कर रहे हो उन्होंने इतना खून बहाया, हमारे भगवान तो खुद सूली पे चढ़ गए जी। इस चीज को लेकर जी। अगर आप इसमें थोड़ा भी तर्क लगाओगे तो ये हीलिंग नहीं है जी। हीलिंग में तो इंसान ईश्वर को याद करते किसी भी रूप में जी। याद करेगा, किसी भी फॉर्म में याद करेगा, उसके हाथों से तरंगे बहनी शुरू हो जाएंगी जी। आप इस वक्त भी आपके हाथों से तरंगे बह सकती हैं जी। और तुरंत किसी के पेट में दर्द हो रहा हो जी। मैं कह रहा हूं आप नास्तिक भी हो ना, उसके ऊपर आप हाथ रख देना और हाथों में से वाइब्रेशन उसके बॉडी में सेंड करते रहना जी। इंस्टेंटली। जो लोग पॉडकास्ट भी देख रहे हैं ना, पॉडकास्ट देखने के बाद ट्राई करना इस चीज को जी। अपने हाथों को रब करना, रब करने के बाद कहना हे ईश्वर मेरे हाथों में से दिव्य उच्चारक तरंगे प्रवाहित हो। वो जब तरंगे प्रवाहित हो, घर में जिसको तकलीफ है उस तकलीफ वाली जगह पर उस तरंगों को देना शुरू कर दें, छुए या बिना छुए, करीबन 15-20 मिनट दें, ठीक है। दर्द है 1 मिनट के अंदर आराम पड़ेगा और बीमारी जो है अगर रोज एक ही समय पे उपचार दे रहे हो वो ठीक हो जाएगी जी। इससे पता लगता है ये चीज वैज्ञानिक होती है जी। तो इसमें हीलिंग का कोई पार्ट ही नहीं हो जो कन्वर्जन करवा रहे हैं, उसमें पूरा माइंड गेम इन्वॉल्व है। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। हाँ, भारत की धरती एक ऐसी धरती है जी
जहां पे कभी भी विश्वास नाम का जो शब्द है ना, कि ईश्वर पे विश्वास करो, जी ये शब्द कभी प्रयोग नहीं किया गया। ईश्वर हमेशा यहाँ पे वैज्ञानिक रहा है। जी क्या कहा है? बाहरी जगत में जीना है जी तो पूरी तरह बाहर जियो, बाहर के नियमों को जियो। और अगर ईश्वर का अनुभव करना है और संपूर्ण होना है अपने जीवन में, अपनी लाइफ को गहराई से जीना है, और आपके भीतर जीवन को लेकर सवाल आते हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर सवाल आते हैं, अंदर की ओर झांको, उसका रास्ता दिया गया है। ध्यान करो, योग करो, हीलिंग करो, उपचार करो। अब ये सारे के सारे आध्यात्मिक नियम हैं। आप कोई भी वेद उठाकर देखो, आप कोई भी उपनिषद उठाकर देखो, आपको वहां पे हर चीज की एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन मिलेगी कि इंसान के अंदर एक प्राणिक एनर्जी होती है। आज विदेश भी उसको मानता है कि बायो एनर्जी होती है। अंदर एनर्जी चैनल्स होते हैं जिनको चक्र बोलते हैं, राइट। अब वेस्टर्न क्वांटम फिजिक्स भी इस चीज को मानता है। तो हर चीज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपकी इस भारत की धरती पे दिया गया है। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं था कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव की पावर लेकर आओ। यहाँ पे तो इतनी पावर है कि इंसान ये कहता है ना कि मुझे ये नियम पता है कि इस पत्थर के अंदर भी जी मैं ईश्वरीय तरंगे पैदा कर सकता हूं अपनी इच्छा शक्ति से जी। और वो भी एक सिद्धांत से काम करता है जी। ठीक है। उस सिद्धांत में जी वो पूर्ण रूप से तरंगों का विज्ञान होता है जी। जिसको अध्ययन के द्वारा यानी कि रीडिंग के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा कोई भी बंदा उसको, कोई भी व्यक्ति उसको प्रैक्टिस कर सकता है। जी। गुरु गोविंद सिंह जी सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही जी अपने बच्चों से और पूरे अपने समुदाय से जितने भी उनके शिष्य होते थे जी कीर्तन करवाते थे, सवेरे ध्यान करवाते थे। जी। वो सवेरे ध्यान क्यों करवा रहे हैं, सवेरे भजन क्यों करवा रहे हैं? जिससे कि जब ये तलवार उठाए ना तो इसके अंदर धर्म का राज हो जी। और जब ये सवेरे ध्यान करेगा, सवेरे उठेगा, तो सवेरे के वक्त की जो उसकी एनर्जी है जी वो हाईएस्ट लेवल पर चैनलाइज होगी और ये अपने काम में परफेक्ट बनेगा जी। वो दिन पर दिन बेटर ह्यूमन बनेगा जी। बेटर स्किल सेट उसके भीतर आएगा। तो ये पूरा साइंटिफिक होता है। आपको तो दूसरी चीज में बिलीव करवाया जा रहा है ना, ये दिखा के देखो हमने इसको हिला दिया, गड़गड़ गड़गड़ होने लगा जी। आप बिलीव करो उसके ऊपर जी। आज आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो, 100% कल उसके ऊपर नहीं बिलीव करोगे। जी। आई होप आई मेड द पॉइंट जी। तो गुरु जी आगे ये है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की आपने बात की है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे खालसा साजना की, पंजाब में हम अकाली दल के तौर पे जानते हैं, श्रोमणी कमेटी अपना काम कर रही है। और जो गुरु गोविंद सिंह जी ने उससे पहले एक और पंथ 5 लोग भेजे थे जो हमने भारतीय परंपरा के साथ थे और उन्होंने काशी में पढ़ने के लिए भेजा। और उन लोगों को हम आज निर्मले संत करके जानते हैं। वहाँ उदासीन संत ने बहुत बड़ा काम किया। शुरू में जितने गुरु ग्रंथ साहब के ट्रांसलेट हुए हैं उसको आम लोगों को में बताया गया है स्पष्ट करके कि इसमें क्या लिखा है, उसका क्या मायने है, गुरु साहब क्या बता रहे हैं। तो वो सारा चलता रहा है, लेकिन आज उनकी आवाज़ भी थोड़ी मध्यम हो चुकी है। जो भारतीय परंपरा का काम गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथों में किया है, क्योंकि जो विरासत है वेदों का कहा, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा वेद जो है वो ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको जो लोग झूठा बोलते हैं वो लोग जो है वो ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर फिर भी उन चीज़ों को छोड़ के आज पंजाब में देखें तो खालिस्तान की बात हो रही है। कभी बाहर वो धरती जो साइंस के लिए मानी जाती है, वहाँ बैठ के ये बताया जा रहा है कि पंजाब में सिख सुरक्षित नहीं है। तो जो खालिस्तान की बात हो रही है उस एंगल को आप गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पेश किया वो क्या करना चाहते थे, भारतीय परंपरा के जितने शब्द है उनको आगे बढ़ाने का क्या मकसद था, और जो खालिस्तानी भाई हमारे लोग कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं? सिख धर्म के जितने संत हैं, महान संत हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उनकी वाणी को जन जन तक लेकर आए, अलग अलग रूप में लेकर आए, केवल उन्हीं की वाणी कमजोर नहीं पड़ रही है। आज के वक्त में भारत में महावीर जी की भी वाणी कमजोर पड़ रही है, महात्मा बुद्ध की भी वाणी। अब आप बुद्धिज्म को देखो भारत में जी, क्या वो जो अंबेडकरवाद में वो लोग क्या ध्यान लगाते हैं? नहीं लगाते ना। हाँ जी, हाँ। क्या वो बुद्ध का जो बुद्ध ने अपने जीवन में संघर्ष किया उस संघर्ष को जीते हैं? हाँ। नहीं जीते ना, नहीं करते ना। जो अब जो है जी। अब वो बुद्ध का मार्ग तो नहीं जी रहे ना। नहीं जी रहे ना। बिल्कुल हाँ। क्यों नहीं जी रहे पता है क्या? सीधी सी बात ये है गुरप्रीत जी, ये आज जो समय है ना, हर इंसान एक ग्राहक है, एक वोट बैंक है जी, एक अपॉर्चुनिटी है जी।
लोकल पॉलिटिक्स का, नेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जी। और इंसान खुद भी छोटे मोटे लालच के लिए ना बहुत सारी चीजें आजमाने के लिए, करने के लिए तैयार है। और उनको थोड़ा ऐसा बिलीव करवा दिया जाता है, अच्छा तुम्हारे घर में क्या पत्नी हमेशा झगड़ा करती रहती है, क्या सब बीमारी पड़े रहते हैं, क्या बताए क्यों? क्योंकि तुम गलत पूजा पाठ करते आ रहे हो, तुम सही रास्ते में नहीं हो। तो जब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को मैच करवा देते हैं, जो कि बड़ी नॉर्मल सी होती है, वो कोई भी एक छोटा मोटा ज्योतिषी भी इस स्टंट को खेलता है। अच्छा। और एक लोकल बाबा भी जिसने कोई सिद्धि, कोई तपस्या नहीं की हुई, कोई पावर उसके पास नहीं है, वो भी इस स्टंट को खेलकर अपनी दुकान चला रहा है। तो वैसे ही ये कन्वर्जन की दुकान भी ऐसे ही चल रही है जी। हमारे साधु संत इसलिए कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि मानव को लगातार छोटे मोटे मनोकामनाएं पूर्ति, कि आप ये देखो, आप जैसे कोई लड़की किसी बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया जी। अब वो उसके प्यार में इतनी पागल है, वो शमशान जाकर प्रक्रियाएं कर रही है जी। वो किसी अजीब सी गुरु माता जो सदर बाजार की मुंड माला पहनकर घूम रही है, किसी ने कहा कि तुम चर्च चली जाओ और वहां पे जाके प्रार्थना करना शुरू हो जाओ। अखबार में, टीवी में इश्तिहार आ रहे हैं, कार्ड बांट रहे हैं था जगह जगह, और बोलते हैं हमारे ये गुरुजी सिद्धि है, ये अपने इतने दिनों में आपका खोया प्यार मिल जाएगा, वशी करना है। वो क्या चीजें हैं? वो वो उसके ऊपर भी आएंगे। ये वही बाबागिरी है? क्या है? वही बाबागिरी है। अच्छा। जिसके पास शक्ति होगी ना जी, उसके पास जनता अपने आप चली जाएगी, उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सूरज चमकता है ना तो धूप अपने आप निकलती है। जी जी, समझ रहे हो मेरी बात को? पंजाब की अंत में जी, पंजाब की जो दुर्दशा हो रही है जी जी, ये दुर्दशा मैं कह रहा हूं ये लंबी चलने वाली नहीं है। अच्छा जी। हाँ, विश्वास है आपका पूरा? मेरा पूरा विश्वास है। बताऊं क्यों जी? आपने खालसा की बात करी जी। पिछले 4 सालों में जी खालसा ने अपना एक ऐसा रूप दिखाया जिसमें सीधा कह दिया कि हम तो भारत के है ही नहीं, पंजाब भारत का हिस्सा है ही नहीं। हाँ, ये भी ये बोला ना खालसा वालों ने, और क्या बोलते हैं, खालिस्तानियों ने। तो खालिस्तानियों ने ये बोला। उसके बाद जो पंजाब के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जो सच्चे भारतीय हैं, जो गुरु की वाणी से जुड़े हुए हैं जी, उन्होंने इस चीज का विद्रोह किया जी। इस चीज का विद्रोह किया जब भारत और पाकिस्तान का अभी वॉर हुआ था जी। तो वहां से बैठकर खालिस्तान का जो नेता है उसने कहा था कि हम इंडिया को पंजाब में ब्लॉक कर देंगे जी। तब जो सच्चे लोग हैं वो भी आगे निकल कर आए। मैं ये कह रहा हूं बाकी सभी धर्मों को चोट पहुंच सकती है इस दुनिया में, ठीक है, सनातन धर्म को और सिखिज्म को जी दुनिया का कोई माई का लाल जी खत्म नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। एक दौर आ सकता है जी, जैसे मक्खी मच्छर बढ़ जाते हैं कमरे में, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं? कि आपने कहा सिखिज्म का आपने स्पेशली नाम लिया और सनातन की बात की। हाँ। सनातन से ही सिखिज्म है। हाँ। तो कैसे देखते हैं जो दूसरे रिलीजन है विदेश से पैदा हुए, जिन्होंने अटैक ही किए, यहाँ गुलाम बनाने की कोशिश की, जो साजिश के ऊपर काम करते हैं, उनमें और सनातन और सिखिज्म में क्या फर्क है? क्या इसकी चीज? जो गरीब घर का बच्चा होता है ना जी, उसे अपना घर पसंद नहीं होता। हाँ बिल्कुल, सही कह रहा हूँ या नहीं? सही है। हाँ, तो वैसे ही जब संघर्ष का समय पंजाब में आया जी, लाइफस्टाइल थोड़ी लोगों की पुअर हो गई, लोग घर घर में समस्या में आ गए, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई जी, तो अलग अलग रास्ते लोगों ने चुने। जो विदेश जा सकता था विदेश चला गया, विदेश जाकर देखी चमचमाती लाइफ, उसको वो सोचो जिस समुदाय ने अमेरिका और कनाडा में जाकर उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर दी, वो आदमी वीक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। उसको रियलाइज करवाया गया कि तू वीक है, कि तू गंदगी में पड़ा हुआ है जी, ठीक है। ये माइंड वॉश किया जाता है, जो व्यवस्थित रियलाइज करवाया जाता है जी। जैसे किसी को बैठे बैठे वहम डाला जा सकता है, कोरोना काल में जैसे वहम डाला गया ना, तुम मरने वाले हो, तुम मरने वाले हो, अपनी पल्स चेक करो, कि वैसे ही लंबे समय तक पिछले 200-300 सालों में जी इंडिया को इस तरीके से तैयार किया गया जी कि इसकी जो जनरेशन है अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज जो इतनी पावरफुल है, जो इंसान को इतना क्रांतिकारी बना देती है, इतना क्रांतिकारी बना देती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं जी, कि इंसान खुद ही नर से नारायण हो जाता है जी। तो उसको बुलवाया गया, उसकी प्रॉपर स्कीम्स प्रिपेयर करी गई, उसकी टीम्स आई, सरकार भी सोई, उनके छोटे मोटे नेताओं को पैसा खिलाया गया जी। एक छोटे नेता को खरीदने में टाइम कितना लगता है? कह रहा हूं सारे नहीं बिकते तो है ना जी जी। क्यों हो जाता है ऐसा जी? तो
ये सारा का सारा फंडिंग का, बिजनेस का, पॉलिटिक्स का खेल होता है। जब तक बीच का आदमी नहीं मिला होगा ना गुरप्रीत जी, जी जी, जब तक बीच का आदमी नहीं मिला होगा तब तक आपके घर में घुसकर कोई डकैती नहीं डाल सकता। पंजाब में अगर ऐसा हो रहा है जी, तो वहां के पॉलिटिशियंस क्यों नहीं उखाड़ फेंकते, सीधा बैन लगा दे, आज से ये नहीं होगा जी। जी, जो सिख हैं वो सिख ही रहेंगे और जो क्रिश्चियन बन चुके वो क्रिश्चियन ही रहेंगे, दैट्स इट। जो होना था हो गया जी। क्यों नहीं रोका जा रहा? बताओ। हाँ। क्यों नहीं रोका जा रहा? इसलिए नहीं रोका जा रहा क्योंकि जो लोअर लेवल के जो लीडर्स होते हैं जी, जो समाज के कर्ता धर्ता होते हैं, उनका मुंह गड्डियों से भरा हुआ होता है। वो भी अच्छे से समझ रहे हैं कि ये आदमी जो है क्या खेल खेल रहा है। पर गुरु जी एक चीज़ का थोड़ा फर्क है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो उन्होंने एक बाणी च अपना लिखते हो, कहते पै काहू को देत नह नह पै मानत आन कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। उन्हों का पैंदा वे ਉਹੀ व्यक्ति ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਡਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? देखो, अगर कोई व्यक्ति सिख परिवार में पैदा हो रहा है जी और उसने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा जी, तो इससे गौरवशाली इतिहास में शायद मॉडर्न एरा में और किसी का हो नहीं सकता जी, किसी का नहीं हो सकता। उसके बाद भी किसी को आत्मग्लानि महसूस हो जी, तो मेरे ख्याल से इससे बुरी बात भी और कोई नहीं हो सकती। जी, डर के आधार पर जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है और खासकर अपना धर्म परिवर्तन धर्म के आधार पे कराया जा रहा है, आप खुद कॉमन सेंस अपनी लगाओ, आप ईश्वरवादी मार्ग पे हो ही नहीं सकते। ईश्वर डर का मार्ग नहीं है जी। ईश्वर का मार्ग आपको ग्रहों से डरना नहीं सिखाता है। ईश्वर का मार्ग आपको भूत प्रेतों से डरना नहीं सिखाता है। ईश्वर का मार्ग आपको डर के मारे अपना धर्म परिवर्तन करना नहीं सिखाता है। ईश्वर का मार्ग और उसकी वाणी तो ऐसी होती है, आप जहां होते हो वहीं पे बलवान हो जाते हो। यही बात गुरु तेग बहादुर जी ने कही, गुरु गोविंद सिंह जी ने कही, भगवान श्री कृष्ण ने कही। बात वही है, समय के साथ माइंड वॉश किया गया जी। सत्ता के लोग मिले, जगह दी गई उनको, आओ जी हमारे गांव में आओ जी और ये वायरस फैलाओ, ये काम करो जी। दिल्ली में जिस गली में कोई ज्ञानी जी या कोई सरदार फैमिली होती थी ना जी, उस गली में से कोई लड़की छेड़ने की हिम्मत भी नहीं करता था जी। ये समय हमने देखा हुआ है। लेकिन वही दिल्ली है जहाँ 1984 का भी दौर देखा। 84 में केवल मेरे पिताजी मेरे गांव में ऐसे हुए जिन्होंने, जब ये दौर चल रहा था, क्योंकि मेरा तो 86 का बर्थ है, लेकिन गांव के लोग और मेरे परिवार वाले बताते हैं जी कि मेरे पिताजी ने बेधड़क होकर एक पूरे ज्ञानी जी के परिवार को अपने घर में जी रखा और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गेट लांघकर भीतर आ सके। जी, ठीक है, वो भी सारे जानते हैं बिना सियासी दाव के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। बार बार उसको दोनों तरफ से हवा दी जाती है कि कोई कहेगा कि कांग्रेस ने कराया, कोई कहेगा फलाने ने कराया। जो जिसकी बात मान लेगा वो उसके तरफ से काम करना शुरू कर देगी। सही बात है जी। आमतौर पर यही है। वैसे जो खालिस्तान की हमने बात की, खालिस्तानियों की बात की, वो तो ज़्यादा करके यही कहते हैं कि पंजाब में जो दिल्ली में हुआ वो हिंदुओं ने किया था सिखों के खिलाफ। क्या आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या वो हिंदू थे, हिंदू सिख का मसला था या दिल्ली में कोई और मसला था? कैसे आप देखा? देखो, हिंदू का तो आज की तारीख में हाल इतना ऐसा है कि वो तो बेचारा अगर गली में भी झगड़ा हो जाए तो आधे से ज्यादा बच्चे तो घर के बाहर निकलते नहीं हैं। उस दौर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जी, उनको फंडिंग की गई जी। ये अब सबके सामने इतिहास खुला हुआ है। यही नहीं है कि केवल दिलजीत दोसांझ की पिक्चर किसी ने देखी तो पता लग गया। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, एक आम आदमी नहीं चाहता है कि मैं बाहर निकलूं और पड़ोसी का जाके गला काट दूं। जी, चाहता है कोई? हाँ बिल्कुल, किसी को क्या जरूरत पड़ी है जी। आपकी इच्छा है? हाँ, नहीं है ना? हाँ।
नहीं है ना, इसकी इच्छा है, ये जो बच्चा बैठा हुआ है नहीं होती। किसकी इच्छा है? हाँ, जिसको खून करने के पैसे मिल रहे हैं उसकी इच्छा है, और क्रिमिनल है, जिसको सत्ता मिल रही है जी, जिसको सत्ता मिल रही है जी, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है। सही बात। ठीक है, और ढकने के लिए कम्युनिटी के ऊपर नाम डाल दो, एक कम्युनिटी को अपने पक्ष में करके दूसरी कम्युनिटी को बदनाम कर देना ही तो पॉलिटिक्स होती है ना जी, तभी तो वोट बैंक बनते हैं। यही चीज है सीधी सीधी। तो ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में अगर कोई ऐसा पूर्वज है कि बच्चा दुखी है, परेशान है जी किसी भी एज में, घर में कोई ऐसा बुजुर्ग होता है ना जी, जिसने पूरी जिंदगी देखी हुई है जी। और क्या, अरे कोई बात नहीं, तो फेल हो गया ना, कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत जोश भरा हुआ है, दुनिया में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जी, ये तो जोश कुछ भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो काम किया जी, उस वक्त इतनी बड़ी जागरूकता मानवता को दी कि वो उन्होंने रियलाइज कराया तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे घर घर में जाके तुम्हारी माँ बहनों को काटा जा रहा है जी, बलात्कार किया जा रहा है उनका। उस वक्त उन्होंने पूरी एक कम्युनिटी को तैयार किया, और वो भी धर्म की भावना से तैयार किया, लूटने की भावना से तैयार नहीं किया उन्होंने जी। और ये शक्ति इतना तेज उसी व्यक्ति के अंदर आ सकता है जिसके अंदर ईश्वर का प्रकाश हो। जी जी, ये तो एक आदमी होता है ना, सही बात कह रहा हो, वो दो लोगों को जाकर बात करे तो दो लोग भी उसकी बात सुनते नहीं है। जी, जिसकी वाणी में सत्य होता है, जिसके साथ धर्म होता है, उसी की वाणी में प्रकाश होता है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में गुरु गोविंद सिंह जी का क्या योगदान है मैं आपको बताता हूँ जी। जब आप कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन को लेकर ये सोचें कि मैं अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकता हूं अपनी लाइफ में जो समाज को और मेरे जीवन को एक बड़ा यश दे और समाज को एक बहुत बड़ी दिशा दे जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जब आप अध्ययन करते हो, उनका नाम लेते हो, उनकी शख्सियत को देखते हो, तो वो एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करते हैं जिसके हाथ में तलवार भी है, जिसके अंदर ईश्वर का वास भी है। उसकी तलवार केवल गलत काम को खत्म करने के लिए उठती है और जो कर्म होता है वो केवल समाज के कल्याण के लिए होता है। उनकी वाणी में, उनके व्यक्तित्व में इतना तेज है जी कि अगर तुम किसी कमजोर को भी सुना दोगे ना, एक लल्लू जो डरता है, कॉकरोच से भी डरता है, उसके अंदर शेर से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी जी, तभी वो दहाड़ता है जी, बिल्कुल, तभी वो आदमी दहाड़ता है। ये तेज है उनकी वाणी में। यही गुण जब मैं उनके बारे में बार बार पढ़ता रहा जी, मेरे अंदर भी वो थोड़ा बहुत, खैर मैं तो उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी वाणी से जो थोड़ा बहुत प्रकाश में झेल सकता हूँ, जो प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है, वो मुझे कर्मयोग में और बेपाक बोलने में जी, ये तेज उनके द्वारा और मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मेरे भीतर प्रभावित होता है। जी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਬੰਧਨ ਭਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ में तुम ही होत सहाय। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ जो गुरु तेग बहादुर महाराज ने कंसैप्ट दिता, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उसनूं जीविया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहादुर कौम खड़ी की। तो दूजी तुक है वो कहते ने बल होआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। तो सानू उही गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज दियां उही सतरां याद करनियां पैणगियां। सानू उही गुरुआं दा बल अपने अंदर, उही तेज, उन्हां दा प्रताप, उन्हां दा आशीर्वाद लेना पएगा ते सानू विश्वास करना पएगा, सानू बलशाली होना पएगा। सानू फिर अज कहना पएगा बल होआ बंधन छुटे सब कुछ हो तो पाए। तो जो असी इन्नी गल आखांगे तो सारे उपा हो जाएंगे, सारिया समस्या का हल नज़र आ जाएगा। साडियां जिहड़ियां अगलियां पीढ़ियां ने वो भी गुरुआं नाल जुड़ जाणगियां ते पंजाब मुड़ के गुरुआं दे नां ते वसदा असीं देख पावांगे। इत्थे गलबात खत्म करदे हां। बहुत बहुत धन्नवाद। एक चीज और बोलता हूँ जी। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी और कोई भी महान शक्ति हुई, चाहे भगवान श्री कृष्ण हैं जी, भगवान शिव हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि तू उसको भज तो तू शक्तिशाली बनेगा। जी, उन्होंने कहा शक्ति तो तेरे भीतर ही है जी,
और ये इतनी बड़ी शक्ति तेरे भीतर है जी। कि इतनी बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है जिसको तू पूछ कर प्राप्त कर सकता है। जी जी बिल्कुल। हाँ तेरे भीतर की जो शक्ति है वो इतनी बड़ी है कि बाहर जिनकी तू पूजा कर रहा है वो भी इतने बड़े नहीं है। जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने मानवता को यही बोला कि भाई तू अपनी असली शक्ति को पहचान। जी तेरे भीतर वो सब कुछ है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बिल्कुल जी, तुसीं तां महाराज की कहते समुद्र ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।